Hi students, good morning, and let us start with a new topic in mathematics, and that is application of derivatives. Now, what is application of derivatives and why are we studying this? Application of derivatives differentiation के बाद का topic आता है, so it comes after differentiation. And इसके अंदर आपको आपके so called deadly question का आंसर मिलेगा कि सर आखिर हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, लाइफ में आखिर इसका काम कहाँ पर आने वाला है. Now this chapter itself, right from the first topic itself, ही आपको बताना चालू करेगा कि ये topics practically important क्यों होते हैं. So application of derivatives one of the most important chapter in mathematics because इसका highest weightage आता है as an application of derivatives, differentiation, integration, application of integration, differential equation, application of differential equation. यदि आप ये 5 या 6 chapters कर लेते हो एंड सिंस आपने मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स ऑलरेडी कर लिया है, आई थिंक आपका मैथ्स ऑलरेडी सेट है गाइस. मतलब उसके बाद में जो चैप्टर्स बचते भी हैं दे आर ओके. फॉर एग्जांपल फिर देन ओनली 3D वुड बी लेफ्ट आउट. आई मीन 3D मींस द वेक्टर एंड उसके जो एसोसिएट चैप्टर्स हैं व्हिच इज वेरी वेरी सिंपल. सो दिस चैप्टर टेक्निकली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज ऑफ कोर्स द हाईएस्ट मार्क के जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी में से ही आता है. नाउ ये तो इसकी तारीफ हो गई. सो लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कौन कौन से टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं या अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में एंड आज हम क्या क्या करने वाले हैं. सो इस चैप्टर के अंदर देयर इज दिस पर्टिकुलर टॉपिक नोन एज एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन. एक और टॉपिक है इसमें विच इज नोन एज रोलेस एंड लेग्रांजे थ्योरम. एक और टॉपिक है इसमें विच इज डेरिवेटिव्स एज द रेट मेजरर. देन देयर इज दिस टॉपिक ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. Then there is this topic of increasing and decreasing functions. Then there is this topic of maxima and minima. And the last one is the word problems of maxima and minima. तो वो मैंने लिखा नहीं है because word problems में ही आता है. Now what I have done is I have written around 4 questions or 5 questions which I have found was of pretty different style. It can be any question guys. Now जो first वाला जो topic है what we are going to do today is errors and approximation. And today we are going to only complete this. And our target is of course to make sure that within this particular week or maybe next week के starting तक at least आपका ये topic complete हो जाए. Okay. Now state board के अंदर जो लोग state board के students हैं, if you complete technically this topic besides the trigonometry and the matrices, then I think only the logic would be left out, and then your first book would altogether complete guys because there's nothing more to it. Now let us see the word errors. What do you mean by the word errors? Humans को मानते हैं कि वो by default एक natural being है, एक human being है जो कि naturally हमेशा errors करता है. But what exactly do you mean by errors? Errors means deviation from the expected value. I thought that this is going to be the case. मुझे लगा कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन ऐसे से कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ कम हो गया. That is known as deviation and which in terms is known as error, जिसको बोलते हो आप गलती. ओके. सो एरर्स के लिए एन अप्रोक्सीमेशन के लिए अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग आजू बाजू क्या वैल्यू आने वाली है. से फॉर एग्जांपल किसी ने आपको बोला √100, तो √100 की वैल्यू आती है 10. अब आमतौर पे किसी को लगेगा अच्छा 99 की वैल्यू बताओ. सो 99 आप बोलोगे अच्छा 9.99, बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली ट्रू. देखते हैं 9.99 आता है कि नहीं आता है. इफ समबडी सेज √25.2 तो आंसर आपको लगेगा आएगा say 5.00001 something. Maybe उतना ही हो, maybe नहीं हो, who knows. So now how are we going to use differentiation to actually solve all these complex problems? Before starting this मैंने टॉपिक पहले क्यों चूज किया, बिकॉज जस्ट अभी आपने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी किया था. यदि आपने वो किया है तो आपको फिर लिमिट्स आता ही होगा आराम से. Now let us see. आपके पास में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से एक ही फॉर्मूला आता है डिफरेंशिएशन का विच इज f डैश x शुड बी इक्वल्स टू f(x + h) माइनस f(x) अपॉन h वेयर लिमिट h टेंड्स टू 0 और h अप्रोचेस 0. यदि मुझे इसी पर्टिकुलर वैल्यू को कुछ यहाँ पर लेकर के जाना है, जस्ट सी दिस व्हाट एम आई डूइंग. ये मेरा वही फॉर्मूला है जो स्टार्टिंग से चला हुआ आ रहा है. So let's do the cross multiplication. So it is going to become h f dash x plus fx. अब ये कहाँ से आया? h को वहां पर लेके गया एंड माइनस fx को वहां पर लेके गया, तो it will become plus
it should be equals to fx plus h. Congratulations guys, this is the formula for errors and approximation. If you would be able to remember this formula guys, you are done and set with errors and approximation. Let's try and understand how to solve, by the way, question something, of this particular category. सबसे पहले तो h का मतलब क्या है? h is a very small value which is almost tending towards 0. हमारे वाले केस में h वो वैल्यू है जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा है या कुछ कम है. यदि वो ज़्यादा होगा तो हम साइन प्लस में डालेंगे, यदि वो कुछ कम होगा तो हम ऑफ कोर्स साइन माइनस में डालेंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस. सो आई पर्पसली टेक अ एग्जांपल ऑफ फर्स्ट वन, दैट इज रूट 99. एंड मैं जैसे जैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू गेट दिस. नाउ सबसे पहले इस फॉर्मूले का मतलब समझो. h आपके पास में होना चाहिए, f डैश x होना चाहिए एंड fx होना चाहिए, तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय fx प्लस h. तो मैं एक एक करके लिखना स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज लेट्स से fx प्लस h, ये जो भी वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 99. fx plus h is root 99. Can I write it like this? It is equals to 100 minus 1. हाँ सर लिख सकते हो. 100 minus 1 का मतलब 99 ही होता है. Now you can understand fx plus h, x plus h. सर लेकिन यहाँ तो माइनस का साइन है, आप प्लस का साइन मान लो और इस टर्म को h को -1 कर लो. बात तो है. लेट्स अंडरस्टैंड. मैंने यहाँ पर अपना एक फॉर्मूला बनाया, fx शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x. सर अब ये रूट x कहाँ से आ गया? मैंने यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं लिया. व्हाट आई एम राइटिंग इज दैट व्हाट इज माय फंक्शन. फंक्शन इज अंडर रूट ऑफ x वेयर x कैन हैव एनी वैल्यू. तो मैंने बस केवल फंक्शन लिखा है. अब देखो इसी के आगे मैं लिख रहा हूँ also fx plus h would be equals to under root of 100 minus 1. करेक्ट, जो ऊपर लिखा था वही लिख रहा हूं. दैट मीन्स f डैश x, यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x फॉर्मूला. यदि आपको नहीं मालूम है, गो बैक टू माय वीडियो, द फर्स्ट वीडियो ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड देन यू कैन फाइंड इट आउट. सो f डैश x शुड बी इक्वल्स टू 1/2 रूट x. व्हाट इज माय h? h क्या है यहाँ पर? -1. यदि यहाँ प्लस का साइन होता तो मैं +1 लिख देता हूँ, बट यहाँ पर h कितना है? -1. ओके, अभी आपने यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करा था fx प्लस h की जगह पर? 99. सो लेट्स पुट f dash x should be equals to 1/2 under root of 100. सर 100 क्यों? बिकॉज आप ही ने x की वैल्यू को कितना माना हुआ था? 100. h की वैल्यू को -1. तो f dash x should be equals to 1/, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ. f dash 100, जहां जहां पे मुझे x दिखाई देगा मैं वहां पे 100 की वैल्यू पुट करूंगा. So it is going to be 1/2 into 10 because square root of 100 is 10. So answer will come out as 1/20. अब एक बार देखो आपको क्या क्या चाहिए था. आपको h चाहिए था, वो आपके पास में आ गया which is -1. f dash x चाहिए था, आपके पास में f dash x आ गया which is 1/20. fx चाहिए था, fx की वैल्यू है रूट x, x आपने 100 माना था तो यहीं पर ही लिख देते हैं that f 100. what was your original fx? root x, तो root 100 is 10. ये भी हो गया. ना कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज को उठाओ एंड इसे सब्स्टिट्यूट करो एंड यू विल गेट द आंसर. सो लेट्स सी, यहां पर लिखोगे नाउ वी नो दैट, एंड वी नो दैट के बाद में आप क्या लिखोगे? ये वाला फॉर्मूला. एंड नाउ स्टार्ट पुटिंग डाउन द वैल्यू. h की जगह पर क्या लिखूंगा? h की जगह पर था मेरे पास में -1, सो -1
into f dash x. What is f dash x? F dash x is 1 by 20, only the values 1 by 20, correct? प्लस की जगह प्लस, what is fx? fx की जगह पर 10. So let's solve this. तो minus 1 by 20 plus 10, or it should be equals to, that is minus 1 plus 200. So minus 1 plus 200 is 199 by 20. सॉल्व करूंगा इसको तो ये आएगा 199. यहाँ डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, 0 था. नाउ लेट्स सॉल्व इट. सो 2 1s are 2, 2 9s are 18, 1 9, 2 9s are 18, 0, and 2 5s are 10. And that's all, guys. This particular part is what? Done. That is 9.95 approximately is your answer. And even if you will check it only with the help of calculator, you will still get the answer as 9.948 something, which is equivalent to what? 9.95. So shockingly, आपने बिना calculator use करे आपने एक value निकाल लिया. And like this, you can solve any of the questions. So let's see. अब की बार मैं क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करूंगा. Of course, I'll let this particular formula be written up over here, and let's try and understand one by one कि आप कैसे करोगे. जितना टाइम मैंने अभी आपको बताया उतना टाइम नहीं लगता. The question gets solved in less than 10 seconds, maximum 20 seconds. उसके आगे टाइम नहीं लगता. Let's see this. So I'm rubbing this off. So what we'll do is every single day we are going to complete one topic. So technically today we are going to complete errors and approximation, and guys the only thing what you need to do is जब आप ये वाला टॉपिक का लेक्चर देख लोगे, प्लीज गाइस डू सॉल्व इट. अब आप बोलोगे सर लेकिन हम तो अभी तक पीछे ही फंसे हुए हैं डिटर्मिनेंट्स में या मैट्रिसेस में, स्कूल में ही चल रहे हैं. गाइस दैट यू नीड टू सी एज एन हाउ यू विल टेक आउट द टाइम. बट माय सिंसियर रिक्वेस्ट वुड बी, आपको कच्चा पक्का भी यदि आपने एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए ना, गाइस बिलीव मी माय टास्क इज डन. ओके, नाउ let's see the second question, which is under root of 25.2. So let's write the second question. Root of 25.2. जैसे ही क्वेश्चन लिखो वहीं पर ही लिख दो fx plus h. अब कॉमन सेंस सोचो, आपको स्क्वायर रूट के अंदर इस टर्म के आजू बाजू किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर मालूम है? सर 25 का मालूम है, 5 होता है. वेरी गुड, बधाई हो, आंसर आ गया आपके पास में. यदि आपको 25 का मालूम है तो h की वैल्यू कितनी हो गई? 25 से तो ज्यादा है. कितना ज्यादा है? 0.2. क्योंकि आपकी वैल्यू कितनी थी? 25, राइट? और ये वैल्यू 25 से बड़ी है, तो इसका मतलब है आपका आंसर प्लस में आएगा. पिछली बार देखो 9900 से कम था, तो मेरी वैल्यू -1 में आया था. सो h की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 0.2. इसका मतलब है f x क्या हुआ है मेरे पास में? एज यूजुअल अंडर रूट ऑफ x, केवल साइन विदाउट नंबर, अंडर रूट ऑफ x. तो यदि आपने और x की जगह पर क्या रखोगे? 25 प्लस 0.2. सो दैट मीन्स दैट आपने यहां पर रखा f25. तो f25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, राइट? अब क्या करोगे? h आ चुका है, f25 5 आ चुका है. अब आपके पास में f डैश x चाहिए. सो f डैश x निकालोगे. व्हाट इज f डैश x? 1/2 रूट x. इसी का निकालोगे ना. अब दोबारा से f डैश 25 वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि x की जगह तो 25 है और h की जगह पर 0.2 है. सिंपल. तो 25 का स्क्वायर रूट करोगे तो इट इज गोइंग टू कम 5 into 2 is 10. तो ये आ जाएगा 1/10. डोंट ट्राई टू पुट डेसिमल्स अनलेस लास्ट आंसर तक डेसिमल मत लिखना. इट बिकम्स वेरी सिंपल देन. ये हो गया. अब क्या करोगे? वी नो दैट ये रहा फॉर्मूला. लेट्स स्टार्ट पुटिंग दिस. तो ये आ जाएगा fx plus h, और इन सिंपल वर्ड्स अंडर रूट ऑफ 25.2 शुड बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था? h. व्हाट वाज h? h was 0.2. सो यहां पर आ गया 0.2 ब्रैकेट f dash x. What is f dash x? 1/10. So let's put 1/10, right? Then plus what is fx? Sir, fx was root x, लेकिन हम तो वैल्यू डालते हैं, तो f25 was 5. तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5. So what is going to be the final answer? That is, ये वाला पार्ट हो जाएगा 0.2/10.
plus 5 or it should be equals to 0.2 plus 50. 0.2 plus 50. 50.2 would be the answer. And that's all. Oh sorry, and upon 10 of course. Right, डेसिमल हटाओगे तो कितना आ जाएगा 5.02 and this answer is approximately right. Correct. So ये आ चुका आपके पास में. तो हर क्वेश्चन में आपको बस h ढूंढना है, f डैश x निकालो, उसमें वैल्यू पुट करो, f डैश x ढूंढना है, fx तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में खुद ही आपका होगा एंड देन बस डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. हर क्वेश्चन में आपको f x प्लस h निकालना है और कुछ नहीं करना गाइस, वेरी सिंपल. एंड डोंट गेट स्केयर्ड सर वो 10 TAN कुछ आ गया था सर, साइन आ गया था, डोंट स्टार्ट वो वरी. आपको सिंपल डिफरेंशिएशन करना है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so the next question goes something like this, which is cube root of 127. So let's write third question. Cube root of 127 should be equals to what? Fx plus h. अब कॉमन सेंस सोचो, क्यूब रूट ऑफ 127 के आजू बाजू कौन सी वैल्यू आपको मालूम है जिसका क्यूब रूट परफेक्टली आपको आता है? वेरी सिंपल. अब ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 इज 64, 5 का क्यूब होता है 5 इंटू 5 इज 25 इंटू 5 इज 125. मिल गया. तुरंत यहां पर आपने लिखना स्टार्ट किया. सो fx इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x. करेक्ट. अब क्या लिखोगे? f दैट इज f कौन सा वाला लिखोगे? 125, क्योंकि आपको इसका मालूम है नियरेस्ट वैल्यू का. तो ये कितना हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 125 which should be equals to cube root of 125 is what? 5. राइट. अब आपको h चाहिए. 125 से ये नंबर बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है. कितना बड़ा है? 2. तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 2. अब क्या निकालोगे? सिंपल f डैश x. f डैश x कैसे निकालोगे? इसका f डैश x निकालना है तो यहां पर पावर क्या है? This can be written something like this, x to the power 1 by 3. स्क्वायर रूट को आप कैसे लिखते हो? x to the power 1 by 2. तो इसको कैसे लिखोगे? x to the power 1 by 3. अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो क्या आ जाएगा? 1 by 3 x to the power 1 by 3 minus 1. मालूम है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है n x to the power n minus 1. So let's see what is the answer. Answer is 1 by 3 x to the power 1 minus 3 is minus 2 by 3. अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? Let's see and let's write it something like this. तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कुछ 1 by 3 x to the power 2 by 3. चलेगा? Of course लिख सकते हो. और इसी को आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 by 3 एंड देन ये क्यूब रूट है तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर. करेक्ट. ये आ चुका आपके पास में. राइट. सो इट इज गाइज वेरी वेरी सिंपल आइदर वे. या आप चाहो तो क्यूब रूट का होल स्क्वायर कर देना. डोंट डू इस वाले पार्ट का बिकॉज 1 by 3 ये क्या है? क्यूब रूट है एंड क्यूब रूट का x स्क्वायर करना है. सो यू विल डू. खैर अभी के लिए एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ मैं. राइट. नाउ लेट्स सी. अब कॉमन सेंस है 125 का तो है आपके पास में क्यूब रूट कितना है? 5. सो बस पुट द वैल्यूज एंड देन गेट द आंसर. सो लेट अस सी हाउ विल वी डू. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल नॉट राइट 2 लाइक दिस, आई विल राइट 2 लाइक दिस, क्योंकि ये x टू द पावर 1 by 3 1 by 3 into 2 is 2 by 3 इसको ऐसे लिख देता हूँ. अब देखते हैं क्या करोगे. वेरी सिंपल गाइस. नाउ वैल्यू पुट करोगे. h की वैल्यू कितनी आई थी? 2. तो यहाँ पर आएगा 2. What is f dash x? अभी तक अपन ने वैल्यू नहीं पुट करा हुआ है इसमें तो लेट्स पुट डाउन द वैल्यू. x की जगह पर क्या वैल्यू डालोगे? 125. सो व्हाट विल यू गेट? 125 का क्यूब रूट होता है 5. 5 का स्क्वायर इज व्हाट? 25. 25 into 3 is what? 75. Correct. So let's put down this value. So ये आ जाएगा 2 into
2 इंटू 1/75, बिकॉज ये पूरा अपॉन में था तो 2 ब्रैकेट 1/75, राइट, h f dash x plus fx. What is fx? Is 5. So what should be the answer? This should be 2/75 plus 5. So 2 plus 5 5s are 25, 25 5, 2 5 7 35 into 37/75. So answer would be 377/75, and that's all. आपको डिवाइड करना है तो आप इसको डिवाइड कर देना, नहीं करना है तो वैसे ही छोड़ देना. सो लेट्स डिवाइड दिस इन द रफ वर्क. तो 75 डिवाइडेड बाय 377, इसको तो डिवाइड भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली करोगे तो 75 5 जा, तो यहाँ पर आएगा 5 5 25, 237, that is 2.0, again एक 0, again 75, 2 is 150, तो 5.02 would be the answer, and that's all. So cube root of 127 comes out as 5.02. So without using calculator, you can solve any kind of questions like these. Got it? आगे बढ़ते हैं and let's move on to the last question. हर एक में वही काम करना है. क्वेश्चन लिखो, उसके नियरेस्ट वैल्यू देखो, कितना ज़्यादा है या कितना कम है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, and that's all. You have got the answer. Let's see the last one. Okay, so the question goes something like this. So the value of fourth is f 2.01. अब यहीं से आपको दिखाई देगा आपके पास में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और h कितना हो जाएगा 0.01. सो इस बार मैं एकदम डायरेक्टली लिख रहा हूँ x should be equals to 2, h should be equals to 0.01, क्योंकि 2 से 0.1 एक्स्ट्रा है. सर आपने 2 ही क्यों लिया? बिकॉज 2 इज द वैल्यू विच आई कैन ओरली फाइंड इट आउट. सो लेट्स फाइंड fx. f2 शुड बी इक्वल्स टू, यदि मैंने इसमें 2 की वैल्यू पुट करा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 into 4 is 16, 16 plus 10 is 26, 26 plus 2 is 28, राइट. अब मुझे f dash x निकालना है, तो f dash x कितना हो जाएगा मेरे पास में 2 आगे आ जाएगा तो 8x plus 5, 8x plus 5 और f dash 2 पुट करूंगा तो 8 into 2 is 16, 16 plus 5 is 21, 2 into 8 is 16 plus 5 21. Now what will you do? Very simple, the same formula. तो आपके पास में आंसर आ जाएगा that is h की जगह पर कितना है 0.01. सो ये आ गया यहाँ पर 0.01. f dash x, what is f dash x is 21 plus fx तो निकाला ही नहीं अभी तक हम लोगों ने. सो लेट्स फाइंड आउट f2. मालूम है ना 2 क्यों निकाल रहा हूँ? बिकॉज 2 की वैल्यू मुझे मालूम है. इट्स मच मोर इजियर टू फाइंड इट आउट. 2 का स्क्वायर 4, 4 into 4 is 16. अच्छा निकाला हुआ है, सॉरी. f2 is 28, माई फॉल्ट. So f2 is 28, so let's find out 28. h f dash x plus this, तो ये कितना हो जाएगा? That is 21 into 0.01. So technically it should be what? 28 and 21 into, आप इसको ऐसे भी करोगे तो ये क्या हो जाएगा upon 100. तो 21 upon 100. So 28 plus 21 by 100. So 2800 plus 21 by 100. Or this should be 2821 by 100 or 28.21 would be the answer. That's all. So you can solve any questions of this standard like this. It's a very, very simple formula. It's a very, very easy chapter too. Okay. So we'll see you again in the next lecture of chemistry, and then we are going to proceed further with the part of physics. Thank you guys so much. Chill. Bye.